Okay, good morning all of you. Myself Dhananjay Pandey from School of Studies in Biotechnology, Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur. Today we are here to start with another set of lecture on DNA microarray. DNA microarray एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप देखेंगे MSc बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है इसमें आपका जो पेपर है एडवांस टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी में आपका यूनिट 3 में फर्स्ट टॉपिक है आपका DNA microarray. Okay. So the question arises in our mind, what is DNA microarray and why we are using the DNA microarray and what are the applications of DNA microarray. So from the name itself, it is clear DNA means we are going to use the DNA somewhere or the other, and microarray means there are arrangement of different microscopic oligonucleotide sequences, and with those oligonucleotide sequences we are going to hybridize the DNA. मतलब हमारे पास DNA के सीक्वेंस अवेलेबल होंगे, इसके साथ ही साथ एक माइक्रो अरे प्लेट्स होंगे, माइक्रो अरे प्लेट्स में बहुत सारे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस अवेलेबल होंगे और उन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के साथ हम इन DNA का cDNA जब बनाएंगे उन cDNA के साथ हाइब्रिडाइज करेंगे और देखने का कोशिश करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितना है, और इस आधार पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा सेल कैंसरस सेल है या ट्यूमरस सेल है और कौन सा सेल नॉर्मल सेल। आइए देखते हैं। सबसे पहले दो अलग अलग प्रकार के सेल्स लेते हैं। Let us consider this as one type of cell. Let us assume this as tumorous cell, and let us consider the cell number 2. This is cell number 1. Suppose now let us consider cell number 2. This is the normal cell. This is the normal cell. अब एक तरफ हमारे पास आ गया ट्यूमरस सेल, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नॉर्मल सेल्स हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि इन ट्यूमरस सेल्स हो चाहे नॉर्मल सेल्स हो, कल हम लोगों ने देखा था एक लेक्चर्स में कि सेल साइकिल जब भी चलता है सेल्स आर इन रिपीटेड स्टेट ऑफ डिवीजन। सेल अपना डिवीजन कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के साथ साथ अपने अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की भी प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। अब जैसे ट्यूमरस सेल्स हो चाहे नॉर्मल सेल्स हो, दोनों कंडीशन में ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस सेल के अंदर एक्टिव फेज में होता है, जिसके फलस्वरूप अगर ट्यूमरस सेल में भी अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है सो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस mRNA, सो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस mRNA. In the similar fashion, the normal cells are also going to produce its own mRNA, its corresponding mRNA. So let me draw like this so that we can differentiate between the mRNA of tumorous cells and the mRNA of the normal cell. So this is mRNA of the tumorous cells and the mRNA of the normal cells. Now what happened? We will perform an activity that is called as reverse transcription, and you might be knowing that by the reverse transcription the mRNA can be converted into cDNA. So here we will apply reverse transcription and this mRNA gets converted to its corresponding cDNA. In the similar fashion, here the mRNA of the normal cells gets converted into its corresponding cDNA. Now here the cDNA is formed, and cDNA of tumorous cells are also available and cDNA of the normal cells are also available. Now the next step is very important, that is labeling both the cells with different coloring fluorescent dye. Now here we will do the labeling it with red color, and here the labeling is done with green color. लेबलिंग यहाँ रेड कलर से हम करेंगे, यहाँ पर लेबलिंग हम ग्रीन कलर से करेंगे। कारण ये है कि हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि कौन से सेल्स ट्यूमरस सेल्स हैं और कौन से
ये सेल्स के सीडीएनए आपके नॉर्मल सेल्स से हैं, मतलब कौन से सीडीएनए हमारे ट्यूमरस सेल से आ रहे हैं और कौन से सीडीएनए हमारे नॉर्मल सेल से आ रहे हैं। लेबलिंग करने के फलस्वरूप जो डीएनए ट्यूमरस सेल से, जो सीडीएनए ट्यूमरस सेल्स के होंगे वो रेड कलर से लेबल हो जाएंगे और जो सीडीएनए आपके नॉर्मल सेल से आएंगे वो ग्रीन कलर से लेबल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ when this both the cDNA from tumorous cells and normal cells are colored by red color and the green color respectively, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल्स का फाइनली मिक्सिंग करेंगे। सो देयर इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप कॉल्ड मिक्सिंग। अब मिक्सिंग में क्या हो जाएगा, ये सेल्स इनके सीडीएनए और इनके सीडीएनए मिक्स हैं, लेकिन अभी भी इनमें अंतर हम देख सकते हैं। कैसे हम अंतर का पता लगाएंगे, क्योंकि ऐसे सीडीएनए जिसमें रेड कलर के कंटेंट होंगे या रेड कलर की लेबलिंग होगी वो सीडीएनए किसका होगा, ट्यूमरस का होगा, और ऐसे डीएनए जिसमें ग्रीन कलर की लेबलिंग होगी वो सीडीएनए किसका होगा, नॉर्मल सेल का होगा। तो इससे हमको अभी भी ये क्लियरली डिस्टिंग्विश हो सकता है, ये क्लियरली डिफाइन हो सकता है कि विच सीडीएनए इज कमिंग फ्रॉम द ट्यूमरस सेल और विच सीडीएनए इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्मल सेल। नाउ इसके बाद का जो अगला स्टेप है ये बहुत ही क्रूशियल होता है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नाउ एक्चुअल टेक्निक ऑफ माइक्रोएरे विल कम। नाउ आई थिंक दिस मच इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन। इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, we will take a plate. This is called as microarray plate. Microarray plate. Now, in this microarray plate, there are good number of wells present. Let us assume it is somewhere like 60,000 to 70,000. Large number of wells are present over there. Good number of wells are present over here. Now, these wells, अब इस वेल के अंदर हर एक वेल में एक स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। इस वेल के अंदर एक स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सक्षम होता है। किससे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इस सीडीएनए से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सक्षम होता है। अब हमने क्या किया, इन दोनों सेल्स को यहाँ पर कर लिया मिक्सिंग। अब मिक्सिंग करने के बाद हम इस मिक्स्ड कंपोनेंट को लेके कहां पे डाल देंगे, माइक्रो अरे के प्लेट में हम इसको लोड करेंगे। जब हम माइक्रो अरे के प्लेट में इसको लोड करेंगे तो आपको ये पता होगा, जैसे कि मैंने बताया, सीडीएनए यहाँ पर इस प्लेट के अंदर, हर प्लेट के अंदर एक स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी करने में सक्षम। तो ये सीडीएनए या ये सीडीएनए जो भी मिक्सचर ऑफ सीडीएनए है, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करेगा इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के साथ जो कि वेल्स में मौजूद है। ओके ना, अब यहाँ पर अगर ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर सीडीएनए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करे। कुछ सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट करेगा और कुछ सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो लेट अस सपोज दैट फ्यू ऑफ दिस सीडीएनए इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट। तो जो सीडीएनए इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा वो वेल्स में ही अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बनाने के कारण अटैच हो जाएगा। और जो अटैच नहीं होगा वो क्या होगा, फ्री फ्लोटिंग रहेगा, इधर उधर फ्रीली ऐसे अटैच रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा वॉशिंग। वॉशिंग में क्या होता है कि जब भी हम इसको वॉश करेंगे तो जो सीडीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के साथ बेस पेयरिंग कर रहा था वो तो नहीं हटेगा, क्योंकि उसने बॉन्ड बना लिया है और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड वेल के साथ अटैच्ड है, तो वो तो उसको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे आपके यहाँ पर सीडीएनए जो कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के साथ पेयरिंग नहीं करते हैं वो क्या करेंगे, वॉशिंग के दौरान पूरे के पूरे बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब ऐसे ही सिर्फ आपके सीडीएनए इस वेल्स में अटैच रहेंगे, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में अटैच रहेंगे जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी या कॉम्प्लीमेंटेशन शो करते हैं, और ऐसे सीडीएनए जो कॉम्प्लीमेंटेशन शो नहीं करते हैं वो वेल से बाहर निकल जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, इसको बोलते हैं हम लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट, अब
अगले स्टेप में जो यहाँ पर हमने सीडीएनए को हाइब्रिडाइज किया था, सीडीएनए जो अटैच हो गया है और बाकी वॉशिंग के थ्रू निकल गया, तो जो अटैच है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे पास इस तरीके से वेल्स हैं, अब इसमें मान के चलते हैं कि कहीं कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और कहीं हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। ओके, सो कहीं कहीं पर सीडीएनए जो है आपका ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन जहां शो करता रहा वहां पर अटैच रहेगा, जहां कॉम्प्लीमेंटेशन शो नहीं करता रहा वहां पर वो अटैच नहीं करेगा, और अटैच नहीं करने के कारण क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा आपका बाहर निकल जाएगा। अब इसको हमको लेजर से ट्रीट करना है, विल ट्रीट इट विद लेजर बीम, लेजर स्कैनर। ठीक है, अब लेजर स्कैनर से हम इसको ट्रीट करेंगे, तो आप थोड़ा सा यहां पर एक बार याद करने का कोशिश करिए, हमने ट्यूमरस सेल के जो सीडीएनए है उसको कैसा लेबल किया था, रेड कलर से। हमने नॉर्मल सेल के सीडीएनए को किस कलर से लेबल किया था, ग्रीन कलर से। तो यहां पर जब हम लेजर से स्कैन करेंगे तो लेजर से स्कैन करने से अलग अलग कलर के फ्लोरेसेंस निकलेंगे। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं यहां से ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस निकल रहा है, यहां से रेड कलर का फ्लोरेसेंस निकल रहा है, ठीक है, यहां से फॉर एग्जांपल येलो कलर का फ्लोरेसेंस निकल रहा है। ओके, और ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जहां पर बिल्कुल फ्लोरेसेंस नहीं निकल रहा है। तो चार केस हमको यहां पर मिलते हैं, वेदर रेड कलर के फ्लोरेसेंस मिले, ग्रीन कलर के फ्लोरेसेंस मिले, येलो कलर के फ्लोरेसेंस मिले या नो फ्लोरेसेंस मिले, ये चार कंडीशन। अब इसका तात्पर्य क्या होता है, आप देखिए रेड कलर का फ्लोरेसेंस मिल रहा है मतलब क्या हुआ, रेड को हमने किससे टैग किया था, सीडीएनए, किसके सीडीएनए, ट्यूमरस सेल के सीडीएनए से टैग किया था। इसका मतलब जहां पर रेड कलर हमको दिखाई दे रहा है वहां पर ट्यूमरस सेल्स के जो जीन्स थे उनके एक्सप्रेशन ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स के। ओके, अब जहां पर ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन को हमने किससे टैग किया था, ग्रीन को हमने टैग किया था सीडीएनए नॉर्मल सेल से। तो जहां पर ग्रीन कलर हमको दिखाई देगा इसका मतलब वहां क्या है, नॉर्मल सेल्स के जीन एक्सप्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्यूमरस सेल। ओके, अब जहां हमको येलो कलर दिखाई देगा इसका मतलब क्या है, येलो कलर दिखाई देने का मतलब है आपके ट्यूमरस सेल्स के जीन और नॉर्मल सेल्स के जीन का एक्सप्रेशन बराबर है, दैट इज इक्वल। और जहां पर हमको कलर नहीं दिखेगा उसका मतलब क्या होगा, ना ट्यूमरस सेल्स के जीन और ना ही आपके कैंसरस सेल्स के जीन एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इस टेक्निक के थ्रू हमको ये सब इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है कि कौन से जीन्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कौन से जीन्स का एक्सप्रेशन कम हो रहा है, कौन से जीन्स ट्यूमरस हैं और कौन से जीन्स नॉर्मल हैं, और कौन से जीन्स का कॉम्प्लीमेंटैरिटी हमारे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के साथ। So this is all about your DNA microarray. It is one of the most important technique widely used in biotechnology. And together with this, अब हमारे जहन में एक सवाल आता है कि हमने पूरा टेक्निक तो परफॉर्म कर लिया, लेकिन इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? तो इसके कुछ एप्लीकेशंस मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे कि आपने देखा, हमने बोला कि यहाँ ग्रीन कलर है तो हम ग्रीन कलर के जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा है देन द of the means green color is for this one means normal cell का एक्सप्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द ट्यूमरस सेल। इसका मतलब हमको किसी भी जीन का एक्सप्रेशन लेवल डिटेक्ट करने में ये टेक्निक कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ ही साथ दूसरा एप्लीकेशन ये हो सकता है कि भविष्य में कोई भी डिसीज अगर होने वाली है, किसी भी प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होने वाला है या कोई भी प्रकार का डिसीज होने वाला है जो कि डीएनए से रिलेटेड है, तो हम इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए एक सूटेबल ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर सीडीएनए का सीक्वेंस पता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता है, और ये दोनों सीक्वेंस से हमको पता चल जाएगा कौन से ट्यूमरस सेल्स हैं, कौन से नॉर्मल सेल्स हैं। तो वी कैन लुक फॉर बेटर ट्रीटमेंट strategy in future for such diseases which are incurable by various medicines or other chemotherapy. So it can be also one of the better option for that. ये तो एक दूसरा हुआ। एक और एप्लीकेशन ये हो सकता है कि जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा, हमने वेल्स में ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस अटैच कर रखे थे, अब इसमें हम डाल रहे हैं सीडीएनए, और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हमें पता था और सीडीएनए के साथ वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था।
Means if we know the sequence of oligonucleotide, we can also determine the sequence of cDNA as well. So definitely it can be very good idea, definitely it can be a very good application for determining and targeting good number of areas in the field of biotechnology, and it is also helpful in studying various kinds of molecular genetic technique as well as in the case of genetic engineering. And I think that this is very important technique, and you should go through it. I hope this lecture is very clear to you. Thank you so much for your kind attention. Thank you.